Good evening, children. Today we will take up a pool of MCQ questions. I am planning to have a set of 100 questions, and let's hope that at least the questions will be asked of that type. I cannot assure you the exact type of exact question, but at least type will gain the confidence, just as you did in case of CBQ. CBQ exactly you did not get the same thing, but at least you are able to get the confidence that yes, we can do that CBQ. So now today the question paper that I have selected is last year compartment question paper. It is, this is 30 bar 1 bar 1, as you can see, series also you can see. So the same question paper today we are going to solve. So let us see what we can do and how we can do. The first question that is given to us is, if alpha and beta are zeros of the polynomial, if alpha and betas are zeros of the polynomial 3x square plus 6x plus k, such that alpha plus beta plus alpha beta is equal to minus 2 by 3, then find the value of k. Then find the value of k. So dear children, now try to understand what is given in the question. See here, alpha plus beta means sum of zeros, and alpha beta means what? Alpha beta means what? Product of zeros. So what is asked to you? Alpha plus beta plus alpha beta is equal to minus 2 by 3. See here, alpha plus beta means minus of coefficient of x by coefficient of what? X square. That means क्या? Minus b by a plus alpha beta means product of zeros. So product of zeros can be written as what? C by a is equal to what? Minus 2 by 3. Okay. Now what is the LCM here? What is the LCM here? A. So minus b plus c is equal to minus 2 by 3. Now let us try to find out the value of minus b. देखिए यहाँ पर this is just like ax square plus bx plus c, right? This is just like ax square plus bx plus c. तो ये माइनस b का मतलब होता है what is it? माइनस 6. माइनस b का मतलब क्या होगा? माइनस 6. और प्लस c का मतलब होता है, c कितना है यहां पर? k डिवाइडेड बाय a कितना है बच्चों? 3 इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू व्हाट? minus 2 by 3, right? So this 3 cancels with 3 here. So this is just like what? Minus 6 plus k is equal to minus 2. So k is equal to minus 2 plus 6, and minus 2 plus 6 is how much? So the correct answer is what? The correct option is D. The correct option is what? D. तो एग्जाम में आपको पूरा नहीं लिखना है. एग्जाम में आप क्या करो, क्वेश्चन नंबर 1 लिखकर आप डी लिख दो तो काफी है. बेटर राइट? सर इतना डिटेल आपने मेरे को एक्सप्लेन किया, एग्जाम में हमको ये सब लिखना है क्या स्टेप में? शॉर्टकट मेथड क्या हो सकता है? देखो शॉर्टकट मेथड मन में सारी बातें कर लेना है. जैसे ही पॉलिनोमियल आप देख लोगे, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड नो इज a is 3, b is what? 6, c is k, राइट? और अल्फा प्लस बीटा का मतलब ये स्टेप में डायरेक्ट आ जाना है, मन में आ जाने का. मन में आप क्या सोचने का? अल्फा प्लस बीटा है ना माइनस बी बाय ए, और अल्फा बीटा है ना सी बाय ए. तो यहां एलसीएम ले लेंगे तो डायरेक्टली क्या होगा? इस स्टेप पे हम आ जाएंगे. इस स्टेप को आप मन तक यहां मन में ले लेने का. ये सारा स्टेप आपके मन में आ जाना चाहिए, और मन ही मन में बता देने का कि भाई ए भी 3 है और ये भी 3 कैंसिल हो रहा है. तो मैं तो आगे जाके ये कहूंगा कि ये स्टेप आपको दिमाग में एक फ्लैश हो जाना चाहिए. ये स्टेप आपके दिमाग में फ्लैश हो जाना चाहिए. तो माइनस 6 इधर आप शिफ्ट कर दोगे तो क्या होगा? 4 आ जाएगा. तो सर आपने इतना डिटेल क्यों बताया? हो सकता है कि ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए पूछे आपको पॉलिनोमियल के अंदर. अगर आपको 2 मार्क के लिए पॉलिनोमियल में पूछते हैं तो यू नीड टू राइट ए सेपरेटली, यू नीड टू राइट बी सेपरेटली, यू नीड टू राइट सी सेपरेटली, सम ऑफ जीरोज अलग सा लिखो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अलग सा लिखो, और फिर इसको सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दिया है, इक्वल टू 1 and y is equal to 2 is a solution of pair of linear equation 2x minus 3a plus a and 2x plus
3y minus b is equal to 0, then what is going to happen? देखो जैसे वो सोल्यूशन की बात करता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सोल्यूशन? सोल्यूशन का मतलब क्या होता है? वो वैल्यू उसके अंदर डालने के बाद इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन, यानी जीरो आ जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। तो जीरो आ जाना चाहिए बच्चों, तो x कितना है यहां पर, y कितना है, तो हम इसमें डाल देते हैं वैल्यू। अब देखो इस इक्वेशन के अंदर 2 इंटू एक्स, एक्स यानी 1 है, एक्स यानी कितना है, तो 2 इंटू 1 कितना होगा, -3 इंटू वाई, वाई कितना है यहां पर 2, तो 3 इंटू 2 कितना होगा बच्चों, 3 इंटू 2 कितना होगा 6, प्लस ए इज इक्वल टू हाउ मच 0, तो 2 माइनस 6 यानी -4 होगा। मन में करना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ये। 2 माइनस 6 कितना होता है -4, तो -4 प्लस ए इज इक्वल टू 0, यानी ए इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, ए इज इक्वल टू कितना हो गया 4। you should be able to do your mental calculations very fast, because if x is 1 and y is 2, that means 2 into 1 is 2, 3 into 2 is 6, so 2 minus 6 is -4, ये फटफट आ जाना चाहिए। -4 plus a is 0 means a is equal to 4, that's all। थोड़ा सा, या फिर सर हमको टाइम लगता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा कैलकुलेशन फिर थोड़ा करो, जितना फास्ट हो सकता है उतना करो, मगर गलत नहीं करना। फास्ट का मतलब गलत नहीं होता है, और स्लो का मतलब राइट होता है, ऐसा नहीं है। हर एक का अपना स्पीड होता है, उस स्पीड से आपको जाना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर यही कंडीशन यहां पर आएगा, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 इंटू 1 कितना होता है, और 3 इंटू 2 कितना होगा, -b इज इक्वल टू वॉट, कितना होगा 0, यानी 2 प्लस 6 कितना होता है बच्चों 8 माइनस b इज इक्वल टू 0, यानी -b इज इक्वल टू -8, यानी b की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, b की वैल्यू होगी +8। तो a और b के बीच में क्या रिलेशन है, a और b के बीच में क्या रिलेशन है, वैल्यू जो है वो a का डबल है, क्योंकि 2 इंटू 4 कितना होगा बच्चों, 2 इंटू 4 कितना होगा, यानी b की वैल्यू आ रही है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, b इज इक्वल टू 2a, या 2a इज इक्वल टू b इज द करेक्ट आंसर। The midpoint of the line segment joining the points -4, 5, 4, 6 lies on। देखिए आपको बच्चों इस क्वेश्चन को आप विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आप कैसे कर सकते हो विदाउट कैलकुलेशन। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है बच्चों, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। सिंपल सी बात है, ये वाला पॉइंट है x1 y1 और ये वाला पॉइंट क्या है x2 y2, तो -4 x1 प्लस x2 बाई 2 यानी कितना होगा बच्चों, ये -4 प्लस 4 बाई 2 यानी कितना होगा बच्चों, ये 0 बाई 2 यानी कितना होगा, यानी x कोऑर्डिनेट क्या हो गया, अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो तुम्हारा मिड पॉइंट कहां पर आएगा, y कोऑर्डिनेट पे आएगा, यानी आंसर क्या आ जाना चाहिए, y एक्सिस पे आ जाना चाहिए। तो करेक्ट आंसर इज व्हाट, y एक्सिस। तो यहां बच्चे क्या करते हैं टाइम वेस्ट करने के लिए, x1 प्लस x2 बाई 2 सर, y1 प्लस y2 बाई 2 सर। तुमको कोऑर्डिनेट किसी ने पूछा है क्या, तुमको कोऑर्डिनेट किसी ने पूछा है क्या, इसको 0 सेकंड के अंदर विदाउट कैलकुलेशन मेंटली ओरली आपको करना आना चाहिए। और कैसे आएगा वो, आप यहां पर जैसे ही आपको दिखाई देगा -4 और +4 है, आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, x कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है, और अगर x कोऑर्डिनेट 0 है तो वो पॉइंट कहां पर लाई करेगा, y पे करेगा। ओके, हाँ अगर आपको ऐसे पूछते हैं कि मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तब आपको क्या करना पड़ेगा, 6 प्लस 5 बाई 2 यानी 11 बाई 2, 5.5, 0, 5.5, ऐसे कुछ भी ऑप्शन यहां पर नहीं है, इसलिए बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट है, if theta is acute angle then 7 plus 4 theta is equal to 9, then value of theta is, आपको theta is acute angle ही हमारे 10th स्टैंडर्ड तक। तो सिंपल सी बात है बच्चों, इसको भी फटाफट कैलकुलेशन आपको करना आना चाहिए। ये 9 में से 7 चला गया, कितना होगा बच्चों, इस 7 को अगर मैंने ट्रांसपोज किया तो +7 इधर जाएगा तो क्या होगा, तो 9 में से 7 चला गया, कितना होगा,
तो ये साइन थीटा इज इक्वल टू 2/4 कितना आता है, और 1/2 थीटा की वैल्यू कब 1/2 होती है, थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है, साइन 30 डिग्री को। सर ये कैलकुलेशन इसको ओरली हम कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ओरली आप कर सकते हो। कैसे ओरली आप कर सकते हो, देखिए आपकी जगह अगर मैं होता तो मैं क्या करता डायरेक्टली 9 - 7/2, देखो मैं मन में कैसे करता 9 - 7/2, 4 साइन थीटा अगर 2 है तो साइन थीटा 1/2 है, और साइन थीटा 1/2 कब आता है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैं एक भी सेंटेंस यहां लिखता नहीं, मैं डायरेक्टली आंसर लिख देता। तो कभी कभी कुछ एमसीक्यू में ज्यादा टाइम चला जाता है, तो कुछ एमसीक्यू में ओरली भी करना आना चाहिए। तो कुछ एमसीक्यू आपको चांस मिल जाता है फास्ट करने का, कुछ एमसीक्यू में थोड़ा टाइम लग जाता है। ओके, तो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, थीटा इज इक्वल टू, यहां लिखो मत कंपेयरिंग थीटा वगैरह वगैरह नहीं, बिकॉज और यहां पर शो करने की भी जरूरत नहीं आपका कैलकुलेशन। एमसीक्यू में इवन इफ यू शो योर आंसर आल्सो यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी मार्क्स। तो सिंपल आंसर आपका आना चाहिए बी, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 4 बी, क्वेश्चन नंबर 3 बी, दैट्स ऑल, नथिंग मोर नथिंग लेस। सेंटेंस लिखने में भी टाइम वेस्ट मत करो, बिकॉज एवरी मिनट एवरी सेकंड काउंट्स। तुम एक्स एक्सिस लिखने तक जो लिख सकते हो उसी टाइम के अंदर तुम 3B और 4B लिख सकते हो। एवरी टाइम मैनेजमेंट एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम तुम बचा के रखोगे आगे चल के उतना ही टाइम तुमको इन्वेस्ट कर सकते हो बाकी क्वेश्चंस के अंदर। फाइन, क्लियर, शैल आई गो फॉर नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा -1/cos थीटा इंटू secant थीटा इज। देखो क्वेश्चन अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन के अंदर ही आंसर है। देखिए tan स्क्वायर थीटा 1/cos थीटा क्या होता है बच्चों, 1/cos थीटा क्या होता है, secant थीटा होता है, और secant थीटा इंटू secant थीटा क्या होगा, secant स्क्वायर थीटा होगा। secant थीटा इंटू secant थीटा क्या होगा, secant स्क्वायर थीटा होगा। मगर थोड़ा सा ध्यान दोगे, अगर मैंने -1 कॉमन ले लिया बच्चों तो secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मैं ले सकता हूं क्या, इफ आई टेक माइनस कॉमन तो ये क्या हो जाएगा, माइनस secant स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, प्लस secant स्क्वायर थीटा, प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो ये क्या हो गया, secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो ये आंसर क्या आएगा, -1। ये उल्टा दिया रे आपको, इंस्टेड ऑफ गिविंग यू द क्वेश्चन एज secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आपको क्या दिया है, tan स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा दिया। tan स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा इज उल्टा -1। तो आप इसको एक आइडेंटिटी की तरह भी याद रख सकते हो कि secant स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो tan स्क्वायर थीटा माइनस secant स्क्वायर थीटा क्या होगा, -1 होगा। और ये भी आपको ओरली आंसर आ जाना चाहिए, ये भी आंसर आपको ओरली आ जाना चाहिए। एम आई क्लियर, फाइन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना आना चाहिए आपको, ये क्वेश्चन आपको पढ़ना आना चाहिए। पहली बात इसको कैसे पढ़ते हैं, अगर HCF ऑफ 98 एंड 28 को अगर हम यम कहेंगे, HCF ऑफ 98 और 28 को अगर हम यम कहेंगे और LCM ऑफ 98 और 28 को हम n कहेंगे तो n - 7m की वैल्यू क्या है। The first thing is that you are not able to read the question properly. What is the question? If HCF of these two numbers is to be called as n and LCM is to be called as n, then what is the value? Okay, can you tell me what is the HCF of what is it 98 and 28 का HCF क्या होगा? आप 10th स्टैंडर्ड के बच्चों फटाफट बता दो क्या होगा, कितना होता है, 14 होता है, सही है ना, क्योंकि 14 के टेबल में 14 7 जा 98 होगा, 14 2 जा 28 होगा, कोई और नंबर तो है नहीं, कोई और नंबर तो है नहीं। अब आपके पास समय नहीं है कि आप HCF अलग सा निकालो, LCM अलग सा निकालो, नहीं चलेगा, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन आना चाहिए भाई। अब LCM कितना होगा 98 और इसका 196, तो n की वैल्यू कितनी है बच्चों, 196 है। या थोड़ा सा कॉमन सेंस अगर आप यूज करोगे बच्चों तो देखिए 14 2 जा 98 आप सब जानते हो, 14 2 जा 28 आप सब जानते हो, 14 7 जा 98 आप जानते हो, और 28 के टेबल में भी 196 आता है और 98 2 जा 196 आता है।
थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करोगे तो फट से आंसर आ जाएगा। अब n माइनस 7n यानी 196 माइनस m की वैल्यू कितनी है बच्चों? m की वैल्यू कितनी है? 14 है। तो 196 में से 7 4 जा 28, तो 98 माइनस करोगे तो कितना होगा बच्चों? सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? करेक्ट आंसर इज व्हाट? तो आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिखना है 6C, दैट्स ऑल। 6C सफिशिएंट है, आपको मार्क्स मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। 98 लिखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, तो देखो क्वेश्चन कैसे पढ़ना है और उसको कैसे लिखना है। ओके, द tangents drawn at the extremities of the diameter of a circle are always, क्या होना चाहिए रे? एक्सट्रीमिटीज, इस शब्द का अर्थ क्या होता है? एक्सट्रीमिटीज यानी क्या होता है? एक्सट्रीम एंड। डायमीटर के एंड पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगा वो हमेशा क्या होता है? पैरेलल होता है। अगर आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर आर ऑलवेज पैरेलल। तो उन्होंने प्रूव दैट नहीं दिया है, इस बार उसको क्या कर दिया? ऑब्जेक्टिव में डाल दिया। तो क्या आंसर क्या आना चाहिए आपका? आंसर आप लिखोगे 7A, दैट्स इनफ। 7A इज सफिशिएंट। 7A, ए है ना पैरेलल। ओके, परपेंडिकुलर होता है क्या? टैंजेंट्स की बात कर रहे हैं, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट की बात मत करो आप। अगर हम डायमीटर के एंड्स पे दो टैंजेंट बनाओगे तो उसका क्या हाल होगा? पैरेलल होगा, राइट। अगला क्वेश्चन है, हाँ, ट्रायंगल्स एबीसी और ट्रायंगल तुमको कौन सा दिया दूसरा? डीएफ। ये दो ट्रायंगल्स आपको दिए हैं, बी करस्पॉन्ड्स टू ई। आपको क्या कहा है? बी करस्पॉन्ड्स टू ई। उसके बाद एफ इज इक्वल टू सी। एफ किसके बराबर है बच्चों? ये एफ वाला किसके बराबर है? सी के बराबर है। और ए बी इज 3 टाइम्स डी। अगर ये डी एक्स है तो ए बी कितना होगा बच्चों? 3 टाइम्स ऑफ एक्स होगा, सही है ना। ए बी इज वॉट? 3 टाइम्स ऑफ डी। डी का 3 गुना कर दो तो ए बी आएगा। तो अगर ऐसी बात है तो आपको पूछा है ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सही है क्या? कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर, सही है क्या? नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। बच्चों कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? 3 गुना साइड है यहां पर, 3 टाइम्स साइड है। कॉन्ग्रुएंट हम कब बोलते हैं? जब वो एग्जैक्टली सुपर इंपोज होता है। तो कॉन्ग्रुएंट की तो बात ही छोड़ दो, इसलिए जहां पर भी कॉन्ग्रुएंट है वो सारे क्या होंगे? नेगेटिव होगा। नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर नहीं हो सकता है, क्योंकि हाँ, ये उन्होंने इसलिए दिया होगा शायद, क्योंकि देखिए बच्चों को यहां कंफ्यूजन क्या होता है कि एंगल साइड ले लेते हैं बच्चे, मगर अगर 2 एंगल्स इक्वल है बच्चों तो ऑटोमेटिकली थर्ड एंगल क्या होगा? क्योंकि अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल्स इक्वल है तो तीसरा एंगल भी क्या होगा? तो 2 एंगल के बीच वाला साइड अगर है प्रोपोर्शन में है तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? वो सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाना चाहिए 8 का होना चाहिए डी। और डी क्या है? सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। सर इतना सारा एक्सप्लेनेशन हमको करना है क्या? नो, इतना सारा एक्सप्लेनेशन कॉन्ग्रुएंट नहीं है ये तो आप मन में ही खटाखट उड़ा दो, और नाइदर ये भी नहीं हो सकता है। आपको देखने के बाद पहले इंस्टेंस में ही इसका आंसर आ जाना चाहिए। ये 2 क्वेश्चंस मैं आपको एडवाइस दूंगा 0 सेकंड्स में आ जाने चाहिए। आई रिपीट अगेन, 0 सेकंड्स में आ जाने चाहिए, तब आपका टाइम मैनेजमेंट होगा। और आंसर आपसे अपेक्षित है 8D, दैट्स ऑल। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं आपको। बहुत सारे बच्चे सेंटेंस लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मत करो यार। गलती कहां कर रहे हो वहां मैं आपको बता रहा हूं व्हाट इज द करेक्ट आंसर। ओके, राइट। नेक्स्ट, इफ -1 raised to n plus -1 raised to 8
इज इक्वल टू 0, देन n इज, देखो माइनस n रेज टू प्लस 8 अगर होगा बच्चों तो व्हाट विल बी दैट वैल्यू, माइनस 1 रेज टू प्लस 8 होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव 1 होगा, पॉजिटिव 1 होगा, राइट। अगर आपको 0 चाहिए तो नेगेटिव 1 की आवश्यकता है, अगर आपको 0 चाहिए तो नेगेटिव 1 की आवश्यकता है, तो यानी n क्या होना चाहिए आपको, नेगेटिव कब होगा, जब n ऑड होगा, क्योंकि n की वैल्यू अगर 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 9 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, -1 + 1 कितना होता है, 0। तो पॉजिटिव इंटीजर पॉसिबल नहीं है, नेगेटिव इंटीजर नॉट नेसेसरी, पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। तो बात आती है कौन सी, ऑड नंबर, इवन तो नो बाय नो मीन्स पॉसिबल। तो तुम्हारा आंसर आना चाहिए 9C। फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप वाक्य में लिखने की जरूरत नहीं है, वाक्य में आपको लिखने की जरूरत नहीं है ऑड इंटीजर, आप क्या लिखोगे, आप क्या लिखोगे, एनी ऑड नंबर चलेगा आपको, एनी ऑड नंबर, ये वाक्य में एनी ऑड नंबर नहीं, नॉट नेसेसरी। क्या आना चाहिए आंसर, 9C। सो दिस इज द करेक्ट आंसर।